Welcome to Rahul Dixit Times. Today my lecture on Constitution of India is on emergency provisions. Friends, emergency provisions in the Constitution of India are contained in part 18 and they cover from Article 352 to Article 360. Since independence of India, there had been so many occasions when the sovereignty, the security, the integrity and unity of India had been threatened, and therefore inspired and taken from the Weimar Constitution of Germany, we have emergency provisions. Provisions under which enormous powers are given to the union executive. Enormous powers, and then rather it becomes one of the salient features of Constitution of India that the union executive is being entrusted with enormous powers. The center takes the entire gamut of the numerous states, rather, meaning it where the center executive, the union executive, taking the entire runs of the government in its hand. We would say that the federal structure is rather getting replaced by a unitary structure, because under the federation as we have in the case of India, we have a strong union and definitely the states are subservient to that. But in the case of emergency provisions, the federal structure is replaced by unitary structure. Now furthermore, we would be dealing with in detail length from Article 352 to Article 360, one by one. Article 352 is proclamation of emergency. At so many instances in the Constitution of India, we would go through the term proclamation of emergency. Now, proclamation of emergency essentially refers to national emergency. For your further information, I would be covering 352 national emergency in detail. But as of now, 352 is proclamation of emergency. An emergency that is imposed on grounds of war, external aggression, armed rebellion. So Article 352 is proclamation of emergency. Article 353 is effect of proclamation of emergency. Now definitely the very moment there is a long proceeding as to following the passage of the emergency, the entire procedures that need to be carried, the passing of the resolution and further so on. But the moment the proclamation of emergency is there, you immediately have to see the proclamation of emergency. Now, where the effects? The effects need to be seen, first of all, at the level of center-state relations. एंड अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारत का संघ है, द एंटायर इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ यूनिटरी सिस्टम. तो इससे बखूबी हमें समझ में आ रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य के जो संबंध हैं, चूंकि अब केंद्र सशक्त है, राज्य पूरी तरह से अब केंद्र के नियंत्रण में है. The states are totally under the control and command of the center. तो सबसे पहला इंपैक्ट होगा आर्टिकल 353 का, जो इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेकेंड लेवल पे लोकसभा की क्या प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली लोकसभा जो है हमारा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर स्टेट्स, द पार्लियामेंटेरियंस. तो इस पे क्या इंपैक्ट आएगा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के ऊपर. एंड थर्ड ऑफ ऑल, जो सबसे क्रूशियल है, फंडामेंटल राइट्स. द मोमेंट द इमरजेंसी इज बीइंग प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, what is the impact upon fundamental rights? Which fundamental rights would be implicable, which would remain suspended? So the second provision as regards to emergency is Article 353, wherein we have seen with the three impacts the effect of proclamation of emergency. Now Article 354, this is provision relating to distribution of revenues. और हमें बताते हर्ष होता है कितना लॉजिकल और कितना देखिए सीक्वेंशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सब कुछ डिजाइन किया हुआ है. एंड डेफिनेटली ये तो वन ऑफ द मोस्ट, मैंने आपको बताया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है.
इमरजेंसी प्रोविजंस। 353 डील कर रहा था इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, लेकिन 354 सीधे सीधे बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यूज की क्या पोजीशन होगी ऐसे में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया द सेंटर इज ऑल अबाउट and the states are under direct control of the center, and we understand at so many provisions as regards to sharing of taxes, trade and commerce, क्योंकि वो सब फेडरल स्ट्रक्चर ही है जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो इस शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी, बिकॉज फर्दरमोर वी हैव सीन सो मेनी टैक्सेस collected by the state, distributed to the for the states, exacted and collected, those type of things. So sharing of revenue पे क्या पोजीशन होगी, this is being dealt in 354. Next to this is Article 355, duty of union to protect the states against external aggression. Definitely since independence we have witnessed numerous incidences of aggressions, and definitely states are sensitive. उनकी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्टेट्स की अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन दिस इज इमीडिएटली द ड्यूटी ऑफ द यूनियन कि हमारे किसी भी राज्य पे ये जो बाह्य आक्रमण हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इसका कोई कुप्रभाव न पड़े। कमिंग बैक अगेन आफ्टर 355 we have Article 356. This is failure of constitutional machinery. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस थे। अब हम देख रहे हैं कि 352 से लेकर कहीं ना कहीं 355 तक के बारे में नेशनल इमरजेंसी की ओर बात हो रही है। सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो मैं क्रिस्टल क्लियर अभी आपको नीचे समझाऊंगा इज आर्टिकल 356. दिस इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मीनिंग द एंटायर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी इलेक्शंस आर ड्यू इन अ पर्टिकुलर स्टेट, whether the conditions are conducive to hold elections or not. राज्य में किसी भी प्रकार के कोई ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो सकती है जिससे एक संवैधानिक गतिरोध सा उत्पन्न हो रहा है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दिस इज आर्टिकल 356. नेक्स्ट आर्टिकल 357, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर आर्टिकल 356. अब देखिए जैसे 352 की स्थिति थी, मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन वहां लोकसभा पे क्या इंपैक्ट आ रहा था, यहां हम देख रहे हैं सीधे सीधे हमारे आर्टिकल 356 का कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर आर्टिकल 356. दिस इज प्रेसिडेंस रूल, जहां स्टेट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज एट अ थ्रेट. नेक्स्ट आर्टिकल 358, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओवरऑल इमरजेंसी की अगर सिचुएशन है तो आर्टिकल 19 की क्या स्थिति होगी, तो बहुत स्पष्ट रूप में आर्टिकल 358 व्यक्त कर रहा है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 359, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी. कल का जो हमारा लेक्चर था फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसके पूर्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, देखिए उसमें भी मैंने बात कही थी आर्टिकल 19 को तो हमें हर जगह देखिए सेपरेट ही कवर करना होता है. एंड हियर आल्सो इन द सेम फैशन अंडर आर्टिकल 358 वी हैव सीन सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी. हाउएवर अब जो पार्ट 3 के बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 359 के अंतर्गत हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय द सेंटर. Next, Article 359A. Now, friends, this stands repealed as of today. And ये भी issue by the way जो था ये स्टेट ऑफ पंजाब को लेके था, जिसमें applications to the part of the state of Punjab. But this stands repealed today. And finally, Article 360. 360. Provisions as to financial emergency. We understand everything is finance. And the moment your financial stability, your credit of the country is at a threat, under Article 360, the Constitution has provision of imposing financial emergency. Now, I hope categorically covering Part 18, emergency provisions, borrowed from the Weimar Constitution of Germany, wherein what would be the impact, what are the state of affairs on fundamental rights,
ओवरऑल स्टेट ऑफ अफेयर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जो मामला है ये हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। सेकेंडली, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक बहुत डिटेल लेंथ में एक एक अनुच्छेद आपातकाल स्थिति को लेके, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, चाहे राज्य के स्तर पे राष्ट्रपति शासन की बात हो, चाहे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो, बहुत डिटेल में मैंने ये लेने की कोशिश की है। फर्दरमोर मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी के लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यू नीड टू सिक्योर द सॉवरेनिटी, द सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। ऐसी स्थिति में द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज विद एनॉर्मस पावर एंड द स्टेट्स आर टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, योर एंटायर फेडरल स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ यूनिटरी मॉडल, और यूनिटरी जब मैं कहता हूं तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, नेवर फॉरगेट दैट। नाउ हम देखेंगे आगे चल के, जो इन तमाम को समझने के बाद अब सेपरेटली अगर हम देखने की कोशिश करें, सो वी वुड से कि सबसे पहले मैंने पहले यहां ईयर मार्क कर दिया आर्टिकल 352, जो हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। नाउ आर्टिकल 352 इज एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी। देश राष्ट्रीय आपातकाल से गुजर रहा है इस समय। ऐसे में, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वॉर, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण एंड आर्म्ड रिबेलियन। नाउ हियर इट इज नोट वर्दी टू एक्सप्लेन यू कि देखिए ये जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन है, दिस हैज कम अप इन द वेक ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, बिकॉज इसके पूर्व की जो स्थिति थी, तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन है इसकी जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस लिया जाता था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था दैट यूज्ड टू टेंटमाउंट इवन टू इंटरनल इमरजेंसी। तो आपको पूर्व की किताबों में इस अनुच्छेद 44 के पूर्व की आपको किताबों में कई जगहों पे दिखाई दे सकता है ये शब्द इंटरनल इमरजेंसी। उसका एग्जीक्यूटिव के स्तर पर, आर्बिट्री एक्शन के स्तर पर थोड़े से मिसयूज की संभावना थी, एंड देयरफॉर वी हैव रिसोर्टेड टू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। मीनिंग हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है ये पूरी तरह से भारत को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पूरी तरह से शक्ति प्रदान करता है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट वॉर। अब देखिए वॉर के आगे तो कुछ भी नहीं बच रहा है। नागरिक पूरी तरह से, सिटीजन अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं कि हमारी सरकार, हमारा संविधान स्वयं अपने आप में हमें सुनिश्चित कर रहा है, उसने समस्त शक्तियां अपने हाथ में ली हुई हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है, और इसके पूर्व इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज होता था। तो दिस इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे हम आते हैं आर्टिकल 356 पे। 356, अब देखिए आपको कितना इजीली आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको इन डिटेल इन 352 टू 360 लिया है, एंड मैंने यहां पे भी ईयर मार्क कर दिया था आर्टिकल 356, जिसमें फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात की जा रही है। अगर इसको सेपरेटली हम देखते हैं तो आर्टिकल 356 सुस्पष्ट राष्ट्रपति शासन है, समस्त शक्तियां, ये तो तीनों प्रकार की आपातकाल डेफिनेटली राष्ट्रपति के ही अनुमोदन से, राष्ट्रपति की ही स्वीकृति से, बाय द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ही लागू होंगे। लेकिन ये खास तौर से स्टेट्स में व्हेनेवर देयर इज इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फॉर दैट देयर कैन बी सो मेनी इंसिडेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लगेगी, अब उसमें अगर ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट कंड्यूसिव, हार्मोनियस इनफ दैट द इलेक्शंस कैन बी कैरीड ऑन पीसफुली, तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त और भी कोई मामला ऐसा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े देश में जहां 28 राज्य होंगे, तमाम ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अंतर्गत आप समझिए कि ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हम
प्रेसिडेंस रूल इसको कह रहे हैं। इसको चूंकि मैंने आपको बताया कि देयर इज अ डेडलॉक ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसको फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। एंड चूंकि स्टेट्स की बात हो रही है, सिंस स्टेट्स आर बीइंग कैटेगोरिकली रेफर्ड, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। तो बहुत ध्यान से, मैं फ्रेंड्स लगातार आपसे कहता रहा हूं, बहुत ही माइन्यूस्क्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं आपको फैक्ट्स देता हूं। कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा कीजिए। अब लगातार जो वीडियोस चलते चले आ रहे हैं, डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, सीइंग द क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूं। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। स्टेट इमरजेंसी थर्ड लेवल पे हम आते हैं आर्टिकल 360 पे, विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड whenever there is a threat upon the financial stability, वित्तीय स्थिरता, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यह स्थापित नहीं हो पा रही है, एंड द क्रेडिट ऑफ इंडिया इज एट अ थ्रेट। हालांकि मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा जो केंद्रीकृत बैंक है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इन फैक्ट मैं तो कहूंगा कि why Reserve Bank of India, for that sake any centralized bank of any country, वो इतना सजग होता है, इतना सजग प्रहरी होता है कि कुछ भी हो जाए, देश किसी भी तरह से आर्थिक संकट की स्थिति से ना गुजरे। बट देन इंटरनेशनल फैक्टर्स, ग्लोबल ट्रेंड्स को लेके किसी का कमांड नहीं है। एंड डेफिनेटली वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप देखेंगे आगे के मेरे लेक्चर्स में, आप देखेंगे कि आर्टिकल 352 इन न्यूमरस इंस्टेंसेस इट हैड बीन इंप्लीमेंटेड नेशनल इमरजेंसी। आप देखेंगे 356 देयर हैड बीन सो मेनी इंस्टेंसेस, लेकिन क्रेडिट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपलॉड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज सेंट्रलाइज्ड बैंक, आज तक की तारीख में कैसी भी स्थिति रही हो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिजर्व बैंक ने कभी भी स्थिति उत्पन्न होने नहीं दी है। मीनिंग दैट ये जो पूरा मैंने आपका इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है, ये एक बहुत स्पेसिफिक लेआउट है। मैं कई बार गौर करता हूं, मेरे पास कई बार लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा सा इमरजेंसी के ऊपर कुछ बोल दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली आप भी अपनी जगह इसलिए ठीक हैं क्योंकि यू हैव न्यूमरस क्वेश्चंस अपॉन इमरजेंसी, एंड डेफिनेटली जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपके, अभी आप देखेंगे 352 में ही मेरे अगला वीडियो जो आज ही शायद नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा, आप देखेंगे कितने बार एक्सटेंड हो सकती है। एक बार एक्सटेंड हो रही तो उसमें प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड होगा, लोकसभा का क्या स्टैंड होगा, पहले 2 मंथ्स था, अब 6 मंथ से कितने अमेंडमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली। लेकिन फिर वही बात है, राहुल ऋषि टाइम्स इज डेडली कमिटेड टू यू। बहुत अच्छे से हम when we join hands together that manifests in terms of results, है ना। तो आप देखेंगे कि पूरा ये जो इमरजेंसी का मैंने प्रोविजन लिया है, एंड बहुत रेयर इमरजेंसी प्रोविजंस पे क्लासेस देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले कि व्हाई इमरजेंसी, बिकॉज ग्रोथ डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सब एक तरफ है। सबसे पहले आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है, वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। वी कैनॉट लेट सिटीजंस टू बी जस्ट वल्नरेबल टू एनी टाइप ऑफ विक्टिमाइजेशन। और बहुत सोच समझ के इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे बनाए गए हैं। एंड ऐसा देखने में आया है कि जब से देश आजाद हुआ है, जो भी सरकारें रही हों, निवर्तमान सरकार भी है, तो आपातकाल को लेके इन द event of emergency being imposed, whether it is national, whether it is presidential, whether it is financial, बहुत सजग प्रहरी के तौर पे मॉनिटरिंग सरकार करती है, और डेफिनेटली 70 साल के ऊपर सुगमता से हमारे बीते हैं। डेफिनेटली क्रेडिट टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। आज का हमारा क्लास इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर था, जिसमें फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, एंड बट ऑब्वियस सिंस दिस इज डेफिनेटली अ सीरीज ऑन माय लेक्चर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको देखिए रणनीति बनाई है। वो रणनीति खास पीसीएसजे वालों के लिए है,
10 papers of law, how to make a foolproof strategy, dividing 4 plus 4 plus 2. ये तो आपका लॉ का पेपर था, बट डेफिनेटली हाउ कैन यू अंडरमाइन कि आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत मजे का आता है। पीसीएस में, आईएएस में मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपको क्लासेस देने की, इसमें फ्रेंड्स जो माइनर इनसाइट है, इसके साथ साथ आप बखूबी महसूस कर रहे हैं, बड़ी गहनता से, बड़ी मेहनत के साथ मेंस को तो सबसे ज्यादा ओरिएंट किया जा रहा है, क्योंकि प्री इज डाइसी, लेकिन प्री अगर आपका निकल भी गया, लेकिन अगर आपका मेंस के ऊपर कमांड नहीं है, तो नेवर फॉरगेट, वहां तो मार्क्स जो मिलने हैं, वहां तो प्री का फ्रेंड स्कोर भी नहीं छोड़ना है। इट्स ऑल अबाउट मेंस, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, डेफिनेटली कंट्री वाइड, एनी स्टेट सर्विस, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संविधान का तो एक अलग ही एस्पेक्ट है अपने आप में। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि इकोनॉमिक्स में मैं आपको इतना कंफर्टेबल कर दूंगा कि आपकी कमांडिंग पोजीशन हो जाएगी इकोनॉमिक्स में। तो मेरे शुरू के जो दो लेक्चर्स थे, दैट वाज डेफिनेटली अपॉन योर टाइम टेबल, आप कैसे टाइम को डिवाइस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है चैलेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चुनौतियां थी, क्या स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी संविधान के बनने में, क्योंकि जो चैलेंजेस थे, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने की कोशिश की थी, उसमें उन चैलेंजेस को हमने एड्रेस किया है प्रत्येक स्तर पर, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज तो आप ये देख रहे हैं जो कभी भी इमर्ज हो सकता है, बट वी हैव एंटायर रेमेडीज टू दैट। सेकेंडली, मैंने बताया था, लेक्चर दिया था अपना फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल्स का कैसे कैसे आगे आना हुआ है। उसके बाद क्रम में, नेवर फॉरगेट इट इज द 5th और द 6th वीडियो, उसके बाद क्रम में आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स का मेरा बहुत एग्जॉस्टिव बट इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, एंड आप सब समझने की क्वेश्चंस भरे रहते हैं, जिससे मैंने प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे बखूबी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज का मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था, और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि थ्योरेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, जिसमें से बहुत मजे के क्वेश्चंस आते हैं, वो ये है। बट देन एक आम सोच ही होती है कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, बस चौथे नंबर पे मन में आने लग जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपको बेहद खुशी हो रही होगी कि बहुत डिटेल्ड लेंथ में मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस को आज कवर किया है। एंड मेरे इसी के साथ आप देखेंगे बस लगातार वीडियोस आते जा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरा वादा है कि सफलता तो मैं आपको दे के रहूंगा, सक्सेस इज एंश्योर्ड। बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वीडियोस जरूर देखते रहिए, और आप सब्सिक्वेंटली देखेंगे वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स, वीडियो ऑन हिस्ट्री, बहुत डिटेल में मैं आपकी पूरी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट क्लासेस लूंगा, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं, बस इन टाइम्स टू कम लगातार ऐसे ही हम लोग सब चलेंगे। I wish you, each of you, very personally, best of luck, cover with flying colors. God bless you. Thank you so much.